My dear sweet, loving, adorable assimilators, welcome back. Today I am here with an amusing, interesting poem. Okay, with the title Wind. Wind, yes, my dear. Actually, this poem has originally been written by Subramaniam Bharati in Tamil. Okay, and that you're gonna read today. That is the actually translated version, my dear, and it is translated from Tamil to English by A.K. Ramanujan. Okay, these two betaji names you need to write also in your notebooks and learn also. Okay, because they are the main names. Okay, that we gonna betaji we gonna learn. Now the another main thing that you gonna betaji cram and learn what is that the title wind. Okay, as Buttuji, we have read one more poem that was The Road Not Taken. There Buttu road. Road refers to not only road. Actually, literally meaning was something else and symbolically its meaning was something else. Okay. There beta ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੁੱਤੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ रीड ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ रोड नॉट टेकन पोएम उसमें बेटा जी रोड का मीनिंग लिटरली तो रोड था बट सिंबॉलिकली इसका मीनिंग था चॉइसेस options and opportunities. Okay, in the same way beta ji here we gonna just have deep corresponding understanding about the title wind because wind is a metaphorical poem. Now what is metaphorical putu? Metaphor is beta I know I have already discussed with you metaphor and similes. Okay, comparative tools that helps us in comparison. ओके नाउ बेटा विंड भी यहाँ पे एक सिंबल है किसका सिंबल है विंड हेयर पुत्तू जी सिंबलाइजेस डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स ओके विंड को हमने विंड नहीं पढ़ना है विंड हम लेंगे एज ए प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज ऑब्स्टेकल्स struggles in our life. Okay, this is the main important thing that you gonna just fix in your mind before reading this poem. Okay, just see Butu. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. See Putu, in these lines बेटा जी कवि क्या कर रहा है कवि जो पोएट है वो बेटा विंड से बातें कर रहा है ओके इट मीन्स कि वो डिफिकल्टीज को बोल रहा है कि डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स आप लोग आपने क्या किया हुआ है मेरी लाइफ में मेरी सारी लाइफ को झंझोड़ के रख दिया है आपने ओके इन दिस सेंस यू पीपल विल टेक इट again if we will just gonna have its literary sense only then we will read it as a wind only in the first stanza तो इसको हम विंड ही लेके पढ़ेंगे ठीक है बुतू जी सो सी नेक्स्ट बट अभी मैं इसकी ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ ओके विंड कम्स सॉफ्टली सी माय डियर कवि हवा से धीरे धीरे बहने के लिए कह रहा है खिड़कियों के दरवाजों को ना तोड़ने के लिए कह रहा है ओके वह उसे कह रहा है डोंट स्कैटर द पेपर्स कि मेरे जो पेपर्स हैं कागज हैं इधर उधर मत फेंको ओके डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ वह हवा को पुस्तकों को शेल्फ से नीचे ना फेंकने के लिए भी कह रहा है ओके और बेटा जी देयर लुक व्हाट यू हैव डिड बेटा जी वो पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहा है उसको ह्यूमन बीइंग के रूप में लेकर उसको बोल रहा है ये देखो क्या कर दिया तुमने ओके यू टोर ऑल द पेजेस ऑफ बुक्स यू ब्रॉट रेन अगेन ठीक है तुमने सारे पुस्तकों के पेज पाड़ दिए हैं ठीक है और उनको नीचे फेंक दिया है एक ताकतवर देवीय संस्था के रूप में इसने बेटा जी पोइट ने विंड को हमारे सामने पेश किया है तो ये इसका एक पर्सोनिफिकेशन रूप है ओके पर्सोनिफिकेशन वे है पुत्तू जी दिस इज द टूल ऑफ बेटा जी पोइट्री ओके एंड बेटा जी here one more thing very important thing that I want to discuss with you here 3 times the poet has beta ji spoken the word don't in different 3 lines don't break the shutters don't scatter the paper don't throw down the books don't what is this don't beta ji this is also a poetic tool and this is called anaphora
remember this thing, this is very important, you need to write it in the notebook. Okay, beta pen down it. Okay, repetition of don't. Okay, this repetition is called anaphora. Anaphora. It means, Butu, the repetition of a word or a phrase of the beginning of a successive clue. Beta ji, clauses, instances are don't in front of you. Okay, beta ji, and now beta next thing is that if we will read the next stanza also, there also one more word you people will find, that is you. Okay, see, you tore the pages, you threw them all down, you brought rain again, you. Repetition of the word you, and this is also anaphora. Okay, at the last stanza you will also see let's. Okay, that will also be our anaphora. So please remember all these things, Butu. These are very important to understand. Okay, so now beta ji, the second stanza that I gonna explain to you. You are very clever at poking fun at weaklings. पोइट कहता है, बेटा जी हवा को, तुम बहुत चालाक हो, कमजोरों का मजाक उड़ाते हो, तुम बड़ी चतुर हो. ओके, पॉकिंग फन मीन्स बेटा लाफिंग एट. ओके, क्लेवर मीन्स बहुत ज्यादा आप चालाक हो, चतुर हो. वीकलिंग्स क्या होता है? कमजोर लोगों का तुम मजाक उड़ाती हो. ओके, frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters. Okay, frail, crumbling houses. Okay, Putu ji, crumbling rafters. Okay, now the word crumbling is again there. Now this is a question for you. What is this? Okay, kindly do beta ji answer me in the chat box about this thing. Okay, what is this? Crumbling. First one, so I have explained to you, anaphora means if in the starting of some line, beginning. Okay, so but this is not only in beginning, this is actually in the full beta ji sentence. Crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling house, crumbling doors, like that. Okay, तो नाउ लिसन. फ्रेल, बेटा फ्रेल की हिंदी होती है कमजोर, फ्रेजाइल भी कहते हैं, वीक भी कहते हैं इसको. ठीक है, क्रम्बलिंग मीन्स अबाउट टू फॉल, जो गिरने वाले हैं, जो अभी गिरने वाला है. तो तुम क्या करती हो? कमजोर, जो कमजोर हो जाते हैं, क्रम्बलिंग हाउस, गिरने वाले हाउसेस को और ज्यादा बेटा गिराती हो. ओके, क्रम्बलिंग डोर्स को. ठीक है, डोर्स मीन्स दरवाजे. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स बेटा जी बीम्स होते हैं ना, जो बीम्स, राफ्टर्स. ठीक है, शहतीर भी कहते हैं इसको हिंदी में. ठीक है, क्रम्बलिंग वुड मीन्स बुतू यू नो द स्मॉल, बेटा जी है ना, स्मॉल वुड, बेटा लक्कड़. ठीक है, लक्कड़ को बोलते हैं क्रम्बलिंग वुड. क्रम्बलिंग बारिश मीन्स हमारी बारिश बुतू, ह्यूमर बींग्स की. क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग जिंदगियां. ठीक है, क्रम्बलिंग हार्ट्स. नो बेटा, हवा तो एक बादी को बेटा जी नहीं हिला सकती ना, जिंदगी को नहीं हिला सकती, दिल को नहीं हिला सकती. तो यहाँ पे हमने हवा को हवा नहीं लेना है. ओके, एज आई ऑलरेडी बुतू आई हैव टोल्ड यू, यहाँ हमने विंड को प्रॉब्लम लेना है. जब बेटा हमें हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अक्कर होती है तो व्हाट हैपन, हमारी बॉडी, हमारी लाइफ, हमारे हार्ट्स, एवरीथिंग बुतू जी, व्हाट बिकम्स हैपन विद देम, दे स्टार्ट क्रम्बलिंग. ओके, तो क्रम्बलिंग होने शुरू हो जाते हैं. ओके, ब्रेक हो जाते हैं, सब कुछ, हार्ट भी ब्रेक हो जाता है. तो बेटा जी नेक्स्ट लाइन, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिश देम ऑल. तो जो बेटा जी कमजोर है ना, जितनी भी बेटा जी थिंग्स एक्सप्लेन की है पोइट ने, इन सबको विंड गॉड क्या करता है? विंड गॉड बेटा जी इनको अलग अलग करके विनोइंग करता है. विनोइंग बेटा जी, बेटा उड़ाकर अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ ग्रेन. आपने देखा होगा बेटा विलेजेस में आपके पेरेंट्स, ओके, मदर स्पेशली क्या करते हैं, वो अनाज को छानते हैं ना, है ना, उड़ा कर बेटा अलग करते हैं. इसको विनोइंग प्रोसेस कहते हैं. तो विंड गॉड भी विनोइंग करता है. क्या करता है? वीक पर्सन को क्रश देम ऑल, जो वीक होते हैं उनको क्रशिश कर देता है, कुचल देता है अपने पैरों के नीचे. ठीक है पुतू जी, तो इसकी हिंदी अभी पूरे स्टैंजे की क्या हुई पुतू जी? लिसन केयरफुली इसकी एक्सप्लेनेशन. कवि हवा को कमजोर व्यक्तियों
और गिरते घरों, गिरते दरवाजों और हर एक चीज जैसे लकड़ी, ठीक है, शरीर, जीवित वस्तुएं, दिल आदि का मजाक उड़ाने में चालाक कहता है कि तुम इन सब का मजाक उड़ाती हो क्योंकि ये क्या है बेचारे, ये कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि ये जीवन में कष्ट और दुख हवा की तरह आते हैं। ओके, यहाँ पे उसने हवा को हवा नहीं लिया, एक्चुअली विंड को हमने क्या पढ़ना है, कष्टों को और दुखों को। ओके, विंड के साथ हमने बेटा जी अटैच करके पढ़ना है, ठीक है। विंड, हमने विंड को विंड नहीं पढ़ना, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। ओके, कवि कहता है कि हवा हर एक कमजोर, जो भी कमजोर चीज होती है ना, उसको ये कुचल सकती है। ओके, एक्चुअली बेटा इसमें क्या कहना उसने बेटा जी चाहा है, उसने चाहा है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं और वो हमारी आशाओं को क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। ओके, और ये हवा का जो देवता है वो बेटा जी क्या करता है, वो कमजोर लोगों को जल्दी से कुचल देता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा में हम पढ़ेंगे कि ये हवा ये सब किसके साथ करती है, कमजोर लोगों के साथ ही करती है। स्ट्रॉन्ग के साथ तो उसकी फ्रेंडशिप होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग के साथ वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। तो देखिए नेक्स्ट पैरा, he won't do what you tell him, so come, he won't you what you tell him, वो वैसा कुछ नहीं करेगा। कौन, ही कौन बेटा, यहाँ पे हवा का देवता, ओके, विंड गॉड। तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो आप उसको बोलोगे, वो अपनी मर्जी के साथ करेगा जो भी उसने करना है, ठीक है। कोई भी उसने डिस्ट्रक्शन करनी है, तबाही मचानी है, तो वो अपनी बेटा विश के साथ ही करेगा। सो कम, इसलिए आइए, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, आओ सभी इकट्ठे होकर अपने स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। ओके, तो आपने क्या करना है, दरवाजों को भी बेटा जी जॉइंट कर देना, बंद कर देना है फर्मली। फर्मली मीन्स मजबूती से। ओके, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। उन्होंने ये भी बोला है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है, जो ट्रबल है, जो बेटा जी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या करती हैं, वीक फायर को ही ब्लो करती हैं। आपने कभी बेटा जी आग जलती हुई देखी होगी, अगर हवा आती है तो जो वीक फायर होती है ना, छोटे छोटे फायर्स के बेटा जो टाइनी जो पीसीज होते हैं वो बेटा जी उड़ के बिखर जाते हैं, लेकिन जो मजबूत फायर होती है वो नीचे और ज्यादा फ्लोरिश होने लगती है हवा के मिलने के साथ। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। रोर एंड फ्लोरिश मीन्स बुतु रीसाउंड एंड थ्राइव। रोर मीन्स दहाड़ना, शेर शेर रोर करता है ना पुत्तू जी। एंड फ्लोरिश मीन्स और ज्यादा फैलना। ओके, ब्लो आउट मीन्स बुझ जाना। ब्लो आउट मीन्स बुझ जाना, बुझ जाती है कौन, वीक फायर बुझ जाती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो क्या करती है, और ज्यादा दहाड़ती है विंड के मिलने के साथ, और ज्यादा फैलती है। ओके, इट मीन्स कि हम जब मजबूत होंगे तो विंड से हमारी दोस्ती अच्छी होगी। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। हिज मीन्स विंड की फ्रेंडशिप, मीन्स प्रॉब्लम्स की, स्ट्रगल्स की, डिफिकल्टीज के साथ फ्रेंडशिप कर लो। उनको ये मत बोलो कि हाई डिफिकल्टी आ गई है मेरी लाइफ में, मैं क्या करूं, हार मत मानो। उनको बोलो कि आओ, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहता हूँ, मुझे कोई परवाह ही नहीं है डिफिकल्टीज की, प्रॉब्लम्स की। ओके, मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू फेस ईच एंड एवरीथिंग। वी प्रेस हिम एवरी डे। तो इस फ्रेंडशिप को हम प्रेस करते हैं। ये फ्रेंडशिप ऐसी है कि जो वीक हैं उनको ही बेटा जी नष्ट करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको जो और ज़्यादा बेटा जी फ्लोरिश करने में हेल्प करती है। तो फिर क्यों हम लोग घबराएं डिफिकल्टीज से, प्रॉब्लम से। ओके, विंड अच्छी है, डिफिकल्टीज अच्छी हैं। ओके, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। लाइफ जो है बेटा जी गुलाबों का एक बिस्तर नहीं है, इजी नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। दिस इज द पोएम विंड। Okay, I hope Putu you all have understood it. Okay, thank you, have a nice day.